I come, sir. Yes, आइए Please प्लीज बैठिए. प्लीज 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 सिट डाउन. Thank you. फरहा निशत Yes, sir. फ्रॉम झारखंड. नहीं सर, फ्रॉम जहानाबाद, बिहार. जहानाबाद. ओके ओके ओके. ठीक है. फरहा जी, आपका फेवरेट सब्जेक्ट है सिविल प्रोसीजर कोड. यस. आपने प्रैक्टिस किया क्या? नहीं सर. ठीक है. तो आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट चूज़ कर लिया फेवरेट में, या कंफर्टेबल हैं आप इसमें? कंफर्टेबल हूँ, कंसेप्ट मुझे समझ आता है इसका. ठीक है. तो फिर आप मुझे बताइए, इंग्लिश है ना आपका? जी जी. हाउ मैनी मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन? So modes of execution can be comprised as attachment, ठीक है. sale, delivery of property, ठीक है. and arrest and detention, ठीक है. and I'm forgetting one, but any other law, any other modes that the law provides. तो ये टोटल कितने हो गए? So I believe three actually. Arrest नहीं, and 4 5 detention. 6 बता दिया आपने, है ना? No, no, sir. Arrest and detention in one, attachment in another, and delivery of property is सब another. प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गए. Yes, sir. दो ही हुए ना, अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, अगेंस्ट द पर्सन. Yes, sir. इट्स वेरी सिंपल. ठीक है. चलिए, अब मुझे बताइए, आप एनी 2 or 3 प्रॉपर्टीज विच कैन नॉट बी अटैच्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन. Okay. So as per section 60 of CPC. ठीक है. चलिए छोड़ दीजिए, तो पता आपको. आप मुझे बताइएगा कि साहब, यदि एक्स पार्टी टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट करना हो तो कोर्ट क्या क्या चीज़ें देखता है? व्हाट फैक्ट मे बी कंसिडर्ड Okay. द कोर्ट पास एन ऑर्डर ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन अंडर ऑर्डर 39 एंड सेक्शन 94. Okay. So if there is any chances of irreparable loss and injury, ठीक है. balance of convenience, ठीक है. and there's another one. प्राइम ऑफेंस. Prima facie. Yes. ठीक है. एंड कंडक्ट ऑफ द पार्टीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. If the order passed in favor of me, I am the plaintiff and you are the defendant, but you are not compliant with that order, Yes, sir. then where the provision in order 39? Also, I'm unable to recall the provision. Order 39 rule 2A क्या कहता है? I'm unable to recall. चलिए ठीक है. What is section 148 of CPC? Section 148 of CPC talks about enlargement of Time. time. Yes, sir. How much? Unable to recall. 30 days. 30 days. Time to time, maximum 30 days. So my question is that beyond 30 days, can court enlarge the time? Yes, sir. I believe it should be. It is in the discretion of court to enlarge depending upon the fact and circumstances. Maybe. It is the discretion of the court or it is the inherent power of the court? So even inherent power can be granted within discretion of court. So by extent it could be called. Farah, this section of Indian Evidence Act is the most comprehensive section. Most comprehensive section. If I have to say, I'm not sure, but if I have to say, I'll say section 32. Section 32 talks about dying declaration. 30, yes, sir. Dying declaration. Okay. And what is the difference between Indian law and English law on dying declaration? So the most, so it could be that in English law, if the person is under the apprehension of death, and if he says something, and if he does not die, it will still be considered as dying declaration. But in Indian law, it cannot be. It could be used as a corroborative evidence or contradictory. Okay. And then Indian law is does dying declaration apply on both civil or criminal proceeding? I'm not sure. In criminal law, yes, definitely. I'm not sure about civil law. Okay. Can you define judgment debtor? Judgment debtor.
judgmentator is a person against whom a judgment or order capable of execution has been passed. Okay. And which property cannot be attached in the execution of decree? So as per section 60, the property which is such as art of tools of artisans and the necessary apparel of the women and Give me two more. Give me two more example. yes sir. Give me two more examples. Yes, sir. Books of account of any business cannot be attached, and the agricultural property, I believe. Okay, okay. And one last question to you. What is the difference between caveat and caveat emptor? So caveat is a petition or application is filed in a court in which the person is hoping, and the person is saying that if anyone approaches the court, then he could be notified before passing any. Okay. And what is caveat emptor? Caveat emptor is a doctrine of Sale of Goods Act, which says in section 16, which says that buyers beware. So it is assumed that the person who is buying something. Okay. Okay. फरहा ये बताइए जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? So judicial review एक पावर है कोर्ट्स की to review their own order in civil proceedings, and in general judicial review means the court can review the orders of the subordinate courts if they are in error of their jurisdiction or any substantial question of law. तो ये बताइए जुडिशियल रिव्यू के लिए क्या पार्टीज एप्लीकेशन फाइल करती हैं या कोर्ट सुमोटो भी ले सकता है एक्शन? So I believe in both the ways. There are different proceedings in regard to that. ओके. लॉ ऑफ स्टॉपल आपने पढ़ा होगा, Yes, sir. क्या होता है ये? So law of estoppel means a party cannot go back to their words if they have promised something to someone, and on the basis of that promise or representation, the other person has altered their position. So, so if that party, the other party who has represented something cannot go back to their promise, sir. ओके. फॉल्स इम्प्रिजमेंट क्या होता है? False imprisonment. लॉ ऑफ टॉर्ट से रिलेटेड है इसका. I'm yet to- चलिए, अडॉप्शन के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें होनी चाहिए? So the capacity of the person who is taking one in adoption, the capacity of person who is giving someone in adoption, and the capacity of the person who is being given in the adoption. All three of those needs to be satisfied. ओके. विल से आप क्या समझती हैं? Will is a testamentary document which is prepared by someone who has died since, and the distribution of property would be done according to that will. ठीक है. मुस्लिम लॉ में विल को लेके क्या कोई लिमिटेशंस वगैरह भी लगाई गई हैं क्या? I'm unable to recall it right. ठीक है. रेफरेंस और अपील में डिफरेंस क्या आपको देखने को मिलता है? So reference is the court in civil procedure. The court has the power to refer a question of law if it believes that such law is invalid and there is no law or any judicial decisions in regard to that. So the court has the power to refer the matter to the High Court. On the other hand, appeal can be done by the parties to the court when there is substantial question of law involved against any judgment of subordinate court, sir. ठीक है, शुक्रिया सर. फरादी, आप मुझे बताएंगे आपने एलएलबी कब किया है? सर मैंने एलएलबी 2018 में किया है सर. और तब से लेकर अब तक? सर मैं 2018 से 2021 तक एज अ लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट काम कर रही थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में. 2021 में मैंने सर तब से मैंने वो जॉब छोड़ के अब तैयारी शुरू कर दी सर, और तब से अब तक मैं वही कर रही हूँ. जॉब क्यों छोड़ दी आपने? सर मैंने 2020 में 31st जुडिशरी के लिए अपेयर किया था, बट मुझे ऐसा लगा कि कन्विक्शनली पढ़ाई नहीं करने की वजह से मेरा प्री नहीं निकल पाया, और मेरा ये गोल है एक्चुअल इवेंचुअल, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर फोकस करती हूँ. वेरी गुड. और अगर ये गोल अचीव नहीं कर पाए आप तो? आई ट्राई अगेन सर. आई सी कि मैंने कहाँ पर कुछ गलतियाँ की हैं, उससे कुछ सुधार ला सकती हूँ कि नहीं, और फिर मैं आगे इस पर काम करूँगी सर. वेरी गुड. अच्छा, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है ये है जहानाबाद, इसका पुराना नाम क्या है? जहानाबाद का पुराना नाम मुझे
पता नहीं। बेलावर सुना है आपने? बेलावर, बेलावर, बेलावर भेलावर, नहीं सर। जान किसके नाम पर रखा गया है ये नाम? ये जहाँ आरा बेगम, दी डॉटर ऑफ शाहजहाँ, आई बिलीव। कौन सी नदी के किनारे पर है? दरधा। वेरी गुड। अच्छा, अभी वर्तमान में बिहार विधानसभा में स्पीकर कौन है? अनएबल। प्रेम्बल में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल है, यस सर। उसमें अमेंडमेंट कब हुआ था? सर 1976, 42nd अमेंडमेंट। क्या क्या जोड़ा गया था? Socialist, secular, and not I'm unable to recall the third word, sir. ओके ओके, चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, शेड्यूल 5 बता दीजिए क्या कहती है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। So it talks about the other special states. I could be wrong. That for reservation purposes. आपकी हॉबीज़ हैं रीडिंग, वाचिंग वेब सीरीज Yes, एंड टीचिंग। yes. तो टीचिंग लाइक नहीं सर, मैं अपने घर के आसपास के अंडरप्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनको पढ़ाना पसंद करती हूँ अपने फ्री टाइम में। अच्छा, वेरी गुड। और वेब सीरीज़ कौन सी देखी है अभी रिसेंटली? सो मोस्टली थ्रिलर्स, और अभी रिसेंटली मैंने अच्छा, भारत में वेब सीरीज़ का प्रचलन क्यों हो गया इतना, किस वजह से हुआ? आई बिलीव कोविड के वजह से लोग ज़्यादा सिनेमा नहीं जा सके, इस वजह से ये लाया गया, मतलब। चलिए वेरी गुड, प्लीज़ सर। फराज, सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा है आपका इस सिलेबस में? से वीक सब्जेक्ट, सब वीक तो मैं समझती हूँ कि नहीं है कुछ, बस मैं गो थ्रू नहीं कर पा रही हूँ। कुछ चीज़ें मेरी सब्जेक्ट में है जो मैं पढ़ नहीं पाई हूँ अभी ठीक से। जैसे टॉट्स मैंने नहीं पढ़ा है अभी, ठीक है, तो वो मुझे नहीं याद आ रहा है। ठीक है, तो आप बस टोट में ही मुझे एक सवाल बता दें, ठीक है? व्हाट इज़ टोट एंड व्हाट इज़ क्राइम, एंड हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश दैट दिस इज़ टोट, दिस इज़ क्राइम? So crime that has been mentioned in statutes or in our laws, which has been made an offence, but tort is uncoded wrongs, but yet actionable. We can go to courts if torts has happened to us. What is the main ingredients or the core which differentiated between an act that this is civil wrong and this is criminal act? So I believe the sanction process, that it has not been codified, so it cannot be applied conviction. मेंस रिया सुना है आपने? दिस इज द एसेंस, ठीक है? नाउ यू कैन गो। बहुत शुक्रिया। राजी, आपके इंटरव्यू से हम लोग तो बहुत खुश हैं। आपको क्या रियलाइज़ हुआ? तो मुझे लगा मैं थोड़ी नर्वस ज़्यादा हो रही हूँ, प्रोविजंस पे मेरा बहुत ध्यान नहीं है और कुछ बहुत ही बेसिक मिस्टेक्स हो गई हैं। अभी यू हैव अ टाइम, बेसिक पे काम कर लीजिएगा और आपका बहुत एक्सीलेंट नॉलेज आपकी है, कॉन्फिडेंट रहिए आप। इसमें 2-3 सिली मिस्टेक हुई हैं जिन्हें आप थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हंसना नहीं है, मतलब ठीक है, स्माइल तो रख सकते हैं, वो रखनी भी है, ज़रूरी है, बट ओवर लाफिंग नहीं, ठीक है? जीभ बाहर निकली है आपके 2-3 बार बात करते वक्त, प्लीज़ उस पर काम कर लेंगे, ठीक है? बाकी तो काफ़ी हद तक आपने सारे आंसर कर ही दिए, तो ऐसा तो है नहीं कि सारे आंसर आप करेंगे, कुछ तो सॉरी भी बोलना पड़ता है ना, यस सर। तो कोई दिक्कत तो हमें कहीं लगी नहीं। एंड वॉचिंग वेब सीरीज़ या रीडिंग्स या टीचिंग में से कोई अगर एक कर लें तो सही रहेगा, क्योंकि आप फंस जाएंगे, ठीक है? कोरोना के साथ साथ इसे OTT प्लेटफॉर्म से भी रिलेट कर सकते हैं कि जब से हमारे यहाँ OTT प्लेटफॉर्म आया है तब से वेब सीरीज़ का प्रचलन ज़्यादा हो गया है, ठीक है? कोरोना तो है ही एक, उसके अलावा भी अगर आप OTT को रेफरेंस देंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है? एंड 2018 से आपने सुप्रीम कोर्ट में बता रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में और यहाँ पर थोड़ी सी और आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगे, प्लीज़ और रिसर्च कर लेना उस पोस्ट के बारे में जिस पे आप गई हैं, ठीक है? और कंट्राडिक्शन क्वेश्चन फंस जाएंगे, क्यों छोड़ के आई हैं ऐसे इस तरीके से। तो आपने बहुत अच्छा आंसर करा था कि आई ट्राई अगेन, तो यही आंसर सबसे सटीक है, ठीक है? कॉन्फिडेंस अच्छा है आपका, आई कॉन्टैक्ट सही है, ड्रेसिंग यही रखेंगे। आई थिंक कैटेगरी तो मिली होगी ना आपको? जी सर। और कौन सी? हैंडीकैप। हाँ, तो ये पहले से ही है आपकी प्रॉब्लम? जी सर, बचपन से।
अच्छा अच्छा तो वही नहीं है तो आपकी स्ट्रेंथनेस। हाँ ये स्ट्रेंथ है, ठीक है। Special और आपका abled डेफिनेटली ना, person। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आपकी बहुत अच्छी रैंक भी आएगी। अच्छा और अच्छा, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप ये इस नहीं वजह नहीं, से इससे नहीं मतलब नहीं, आप एक्सीलेंट। Excellent। अगर आप हमारे पेपर्स देखेंगे तो मैं केवल शब्द ही 2 लिख दूंगा आपके लिए, शुरू में लिख दिया होगा, मैंने सबसे शुरू किया होगा, शुरू में लिख दिया होगा एक्सीलेंट, वेरी 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 गुड। हाँ और दूसरी चीज़, ये मेंस कैसा हुआ आपका? मैं तो अच्छा गया सर। सेटिस्फाइड है? जी जी। हाँ, छूटा तो नहीं कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आई ट्राइड, हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा था। अच्छा अच्छा। जी, तो मैंने कोशिश की कि मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ूं नहीं। कितना हाँ। एक्स्ट्रा टाइम के मतलब जो कैटेगरी के हिसाब से? 1 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। अच्छा अच्छा, बिहार। जी। अरे वाह। तो फिर तो कुछ ठीक। ज़्यादा मतलब मैं कोशिश करती कोई भी क्वेश्चन स्किप तो फिर उसी रूम में बिठाया आपको या अलग? नहीं, हैंडीकैप्ड लोगों के लिए एक अलग कमरा था सर। अच्छा, वो अच्छा। थोड़ा ग्राउंड फ्लोर पे कर दिया था, कन्वीनियंस के हिसाब से अच्छा काफ़ी अच्छा था। ये तो बहुत फिर अच्छी आपको बात है भाई। बेनिफिट होगा। लेकिन कंपटीशन तो उसमें भी होगा। हाँ, हाँ 6 वो तो बच्चों वो का उनमें था। आपस में रहता है। कितनी पोस्ट है आपके इसमें? 2 पोस्ट हैं सर, 6 बच्चों का मैनेज हुआ है। हाँ कोल 2 6 कोई है। जी जी, ओवरऑल 6 हैं। हाँ तो वही है, 1-1-3 का रेशो है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छी कैंडिडेट है, बहुत शानदार कैंडिडेट। आपका हो जाएगा डेफिनेटली, रैंक आएगी बहुत अच्छी बहुत आपकी। शुक्रिया। ठीक है चलिए ठीक है, गुड लक। थैंक यू सो मच। ठीक है।